Good morning. Students, today we have to discuss business communication and ethical context. Already we have discussed different topics, and that was related to business communication and technological context, and the second was business communication and global context. And now of this series, this is the last lecture of this series, that is business communication and ethical context. और इस लेक्चर में हम मोस्टली बिजनेस कम्युनिकेशन को एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हाउ डिफरेंट एथिक्स आर इन्वॉल्व्ड व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस, एंड डेफिनेटली दीज एथिक्स विल इन्वॉल्व इन अ लोकल बिजनेस एज वेल एज इन एन इंटरनेशनल बिजनेस। मीन्स इसमें हम कल्चर भी देखेंगे, इंडिविजुअल भी और नेशनल भी, ठीक है, एंड इवन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी। मतलब कि थ्रू आउट कल्चर में, चाहे हमारा अपना कल्चर है, चाहे कंट्री का कल्चर है, चाहे आउट ऑफ कंट्री का कल्चर है, दोनों कल्चर में हमने एथिक्स को देखना होता है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, एथिक्स आर द मेन की ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड वन थिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन, द बेसिक पर्पस इज एथिक्स। द बेसिक पर्पस of a business, any business communication, any type of business communication is to maintain goodwill, good terms, and goodwill या good terms को maintain करना students, that is directly linked with ethics। तो वो बात ethics की ही हो रही होती है। And further what we have to discuss here in this lecture, there are the few things। Number one, we shall discuss background of ethical context, and in background of ethical context we have to discuss 2 points. Number one is ethical situation, number two ethics as communication issues. Means what are different in different situations, which type of ethics we have to maintain, and then we have to see how different ethics can create different communication issues, problems कैसे वो create कर सकते हैं अगर हम उनको maintain नहीं करते, उन पे focus नहीं करते। Number two, we have to discuss influence on the personal ethics, कि पर्सनल एथिक्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो चीज़ हमें किस तरह कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम भी कर सकती है, ठीक है, या किस तरह वहाँ पे वो हमें हेल्पफुल कर सकती है। इसको हमें देखना कॉन्टेक्स्ट के ही बैकग्राउंड में है। ओके, सेकंड थिंग वी हैव टू डिस्कस इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनल एथिक्स। See, in personal ethics we have different things that we have to discuss. One, people, culture, philosophy, law, and religion. And students, you can see that all these elements are somewhat like the before or the previous discussions that we have done in business communication and global context, right? And remember this thing, we are discussing it as well as in the global context, right, in which are in all cultures, our culture and even in others culture, we have to maintain ethics, remember. And the ethics are the main key. Ethics have the key role in business communication. If you are not in position to earn business, to run a business, to expand business, or to have a good deal with the second party, then your maximum struggle will be to maintain good business ethics between both parties, good terms between both parties, good relation between both parties. ये basic purpose है, याद रहे आपको, ये change नहीं हो सकता चाहे आप business करें चाहे आप loss करें। Anyways, the third thing that we have to discuss under this discussion, that is communication and the ethical issues. Different ethical issues we have to discuss, and in this ethical issues we have different categories. Number one, legal issues, key areas, ethical and organizational responsibility. Students, these are the three topics that we have to cover under this discussion, and this discussion is known as business communication and ethical context. ये तीन टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जो हमने कवर करने हैं, इनकी फर्दर डिटेल आएगी, सब हेडिंग्स आएंगी सारी। इसका आपको फ्रेम आपके माइंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग, इन दिस सेक्शन वी हैव टू डिस्कस बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिकल कॉन्टेक्स्ट। नंबर टू, इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल एथिक्स। नंबर थ्री, कम्युनिकेशन एंड एथिकल इशू। ये तीन चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो कि हमने डिस्कस करनी है इस सेक्शन के अंदर, स्टेप बाय स्टेप एंड द वन बाय वन। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, पॉइंट नंबर वन, बैकग्राउंड टू एथिकल कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस द बैकग्राउंड। Here we have different points. Number one is facts are important. Facts are important. Facts means reality, real situation, that is very important to make ethical decision, right? Ethical decision लेने के लिए आपको facts का पता होना बहुत ज़रूरी। देखें, if you have to decide right and wrong between that from the two, that is right and wrong, आपको facts पता होंगे तो फिर ही आप right decision लेंगे ना। अगर आपको facts ही पता नहीं तो फिर आप गलती की तरफ भी जा सकते हैं। तो पहला ये है एथिकल्स में इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें कि आपको हमेशा फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स फॉर एथिकल डिसीजंस। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल सम टाइम होता क्या है, कंपनी में कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई इश्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, एक एम्प्लॉय क्लेम कर रहा था कि ही डिड रॉन्ग विद मी, ठीक है, वो कहता नहीं जी ही डिड रॉन्ग विद मी। अब डिसीजन कैसे होगा ना, डिसीजन तो ज़ाहिर होगा किस बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे, क्योंकि फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। उसकी बेस पे फिर आप एथिकली यू विल बी इन पोजीशन टू डू गुड डिसीजन। नंबर 2, इन डिफरेंट सिचुएशन यू डिसाइड द राइट एंड रॉन्ग। देखिए जब आप डिफरेंट सिचुएशन में आपने राइट एंड रॉन्ग में से कुछ चीज़ डिसाइड करनी है तो डेफिनेटली दैट राइट और रॉन्ग विल बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ एथिक्स। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एथिकली यू आर बाउंड टू डिसाइड राइट, यू आर बाउंड टू डिसाइड राइट एथिकली, प्रोफेशनली भी और एथिकली भी, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका दुश्मन है, वट एवर इट इज़, आपका वेरी क्लोज है, आपका जूनियर है, अदर डिपार्टमेंट से है, आपका काम वहाँ पे यही है कि आपने वहाँ पे राइट ही डिसाइड करना है। नंबर 3, डिसीजन मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन फैक्ट्स आर मिसिंग। अगर आप फैक्ट्स आपको नहीं पता चलेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, तो डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट होती है। असल में हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, देखें इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड द फैक्ट्स इट मीन्स एथिकली सम एम्प्लॉइज़ हैव डन रॉन्ग, कि उसकी ड्यूटी थी आपको एक्चुअल फैक्ट्स प्रोवाइड करता एज अ बॉस, एज अ जूनियर, तो उसने वो काम नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। देखें बीइंग अ बॉस आपने अपने जूनियर को कहा कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड यू हैव टू टेल मी द रियल फैक्ट्स, और आप रियल फैक्ट्स बताते ही नहीं। ठीक है, उसमें फॉल्स चीज़ें ऐड करके बता देते हैं तो डिसीजन मेकिंग गलत होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो रही है। नंबर 4, एथिकल प्रिंसिपल्स सेंटर्ड अराउंड फेयरनेस। देखिए एथिकल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सेंटर्ड अराउंड फेयरनेस, एंड फेयरनेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द राइट, वो राइट चीज़ से रिलेटेड है, और फेयरनेस आपकी रिलेटेड है राइट डिसीजन मेकिंग से, राइट। तो इसलिए भी हमें एथिकल प्रिंसिपल्स को मेंटेन रखना पड़ता है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आई एम रिपीटिंग, एथिकल प्रिंसिपल्स सेंटर्ड अराउंड फेयरनेस, सर्विसेज, क्वालिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, डिग्निटी, हेल्प इन मेकिंग डिसीजन, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करके हमारे एथिकल प्रिंसिपल बनते हैं। इफ़ समवन सेज व्हाट आर एथिकल प्रिंसिपल्स, राइट देयर नेम्स, तो दीज आर द एथिकल प्रिंसिपल्स, राइट, टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये सारे एथिकल इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे 1, 2, 3 एंड ऑल 4 पॉइंट्स एंड द सब पॉइंट्स ऑफ 1.4। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, डिग्निटी, हेल्प इन मेकिंग, ये सारे के सारे क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं। ऑल आर नोन एज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। नंबर 3, ethical situations. Just to clarify the previous topic, that was background to ethical context. तो इसमें मज़ीद चीज़ ऐड की हुई है ताकि आपको एथिकल कॉन्टेक्स्ट का मज़ीद समझ आ जाए। तो उसमें ये अब हमने ऐड किया हुआ इसमें एथिकल सिचुएशंस, कि आप देख सकें कि वेयर सिचुएशन इन डिफरेंट सिचुएशंस हाउ एथिक्स आर इन्वॉल्व्ड। नंबर 1, ड्यूरिंग an on campus during an on campus interview, यानी कि on campus mean a campus where you are studying, if the interview is held being conducting there, a recruiter asks you why he should hire over your friend, तो recruiter आपको वहाँ ये भी कह सकता है कि आपको वो क्यों हायर कर ले आपके दोस्त को छोड़ के, आपके क्लास फेलो को छोड़ के। देखें यहाँ पे एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं। यू हैव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, इफ़ यू हैव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम वुड यू शेयर इट, तो ये आपसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि आप उसको शेयर करेंगे। डेफिनेटली जो मर्जी हो, एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन, एथिकली देयर एट दिस टाइम यू आर नॉट अलाउड टू शेयर दीज टाइप्स ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। देखें मिस्टेक्स, गलतियाँ सबसे होती हैं, हर कोई गलती करता है, टू एयर इज़ ह्यूमन। ठीक है, गलती काम इंसान का है, तो आप वहाँ पे ऐसी नेगेटिव चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे इस प्रोफेशनल लेवल पे जाके। ठीक है, सेंसिटिव लेवल पे जाके। हाँ, बाकी पर्सनल जो है ना आपके कन्फ्लिक्ट्स, दैट इज़ समथिंग एल्स। नंबर 2, यू विटनेस एन अदर स्टूडेंट चीटिंग ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट एग्जाम। अगर आप देखते हैं ना कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, स्टूडेंट आपके साथ बैठा, आगे पीछे बैठा, चीटिंग कर रहा है, तो डू यू कन्फ्रंट हिम। ठीक है, कन्फ्रंट हिम, आप उसे कन्फ्रंट करेंगे, या डू यू टेल अदर स्टूडेंट्स आर एग्जामिनर, या आप वहाँ पे उससे कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेंगे, या आप एक दूसरे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि देखें जी वो देखें क्या कर रहे हैं, या एग्जामिनर को बताएंगे, क्या करेंगे आप। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में बताने पे ना क्या नाम है,
ठीक है, मीन्स के वट एवर इन्विजिलेटर इज प्रेजेंट देयर, उस डेफिनेटली ही और शी हैज़ ड्यूटी, दे आर देयर टू ऑब्जर्व दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, लेट हिम डू हिज वर्क। और आप अपनी ड्यूटी मुकम्मल करें, जो आपकी ड्यूटी है, जितना आपका काम है आप उसको जारी रखें, उस पर इफेक्ट ना करें। देखें, इफ़ यू विल ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द मैटर्स ऑफ अदर्स, डेफिनेटली योर टाइम विल बी वेस्टेड, आप पीछे रह जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। तो नो नीड टू डू इट, लेट द इन्विजिलेटर फाइंड हिम एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नंबर 3, अ फर्म इन्वाइट्स यू फॉर इंटरव्यू एट द डिस्टेंस ऑफिस। अगर आपको एक कंपनी, एक फर्म इंटरव्यू के लिए बुलाती है बहुत दूर, फॉर एग्जांपल कहीं पे सवात कलाम वाली साइड पे बुला लेती है, कश्मीर साइड पे बुला लेती है, ठीक है, या वादी कैलाश में बुला लेती है कि वहाँ पे बड़ी अच्छी कंपनी है, वहाँ पे आपने आना जी इंटरव्यू के लिए, ठीक है, विद TADA, आपको TADA भी, ट्रांसपोर्ट और सारा अलाउंस सारे मिलेंगे। यू आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो आप क्या जनरली नॉट इंटरेस्टेड है, बट आपका कोई दिलचस्पी नहीं वहाँ पे जाने की, इतनी दूर जाऊँ, मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रही है वहाँ पे जनाब, तो खाने पीने का खर्चा भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि जी मैंने नहीं वहाँ जाना। लेकिन लेटर यू आर डिसाइडिंग, एंड सी ऑन विच बेस यू आर डिसाइडिंग टू गो, बिकॉज यू वांट टू मीट अ फ्रेंड स्टेइंग देयर, कि आपको फिर याद आता है यार मेरा तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा दोस्त भी रहता है, चलें वहाँ पे चलते हैं, जाके जनाब उसको मिल भी लेते हैं साथ, ठीक है, तो इंटरव्यू भी दे लेंगे वहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि एथिकली कि डू यू एक्सेप्ट टू गो, कि इस सिचुएशन में आपको जाना चाहिए वहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न योर फ्रेंड इज़ देयर, तो डेफिनेटली एथिकली यू शुड नॉट गो, ठीक है, एथिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंपनी, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन को देखना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गो देयर, राइट। तो दिस इज़ आल्सो एथिकल इशू, एंड नाउ वी शैल मूव अहेड। ओके, पॉइंट नंबर 2, here is point number 2, influence on the personal ethics. Number 1, influence on the personal ethics, we have to discuss people. People means family, teachers, close friends, relatives, peers. See, ethics between different members of family, ये हमेशा एथिक्स डिफरेंट होते हैं। जैसे ना कोई फैमिली बड़ी, आप खुद डिसाइड करते हैं ना, फ़लाँ जो हमारे मामू है जनाब, उनकी फैमिली वो बड़े डिसेंट है, हमारी जो खाला की फैमिली है ना, वो बहुत ज़रा अनसिविलाइज से लोग हैं, वो अनएजुकेटेड भी हैं, मेरा मामा आई विल नॉट गो देयर। तो देखिए, आपने भी ये चीज़ें डिसाइड की होती हैं कि कौन सी फैमिली, हमारी फैमिली कैसी है, दूसरे जो हमारे फर्स्ट कज़न था उनकी फैमिलीज़ कैसी हैं, सेकंड वालों की कैसी हैं, क्लोज ब्लड रिलेशन वाले जो उनकी फैमिलीज़ कैसी हैं, एथिकली अच्छे हैं, उनके अखलाकियात अच्छी है। तो ये स्टूडेंट्स चीज़ें आपने सब डिसाइड की होती है। इसके बाद टीचर्स के बारे में आपकी एक ओपिनियन होती है, क्लोज़ फ्रेंड्स के बारे में भी ओपिनियन होती है कि भाई है तो मेरा क्लोज़ फ्रेंड, लेकिन ना नहीं यार ये बात नहीं सुनता, वो इस तरह की बात नहीं करेगा, लिहाजा लीव इट, कोर देखें। रिलेटिव्स में भी देख लें, पीयर्स कहते हैं आपके जो कोलीग्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एथिकल इश्यूज़ हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, फैमिली में भी होता है, टीचर्स, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पीयर्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, इन सब में। उसके बाद कल्चर पे भी होता है, ठीक है। एथिक्स का इन्फ्लुएंस जो है ना, एथिक हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर एज वेल एज। देखिए, किसी खास सिटी के लोगों के बारे में आपकी क्या राय होती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इस्लामाबाद, हाउ डू यू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ लाहौर, हाउ डू यू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ कराची, हैदराबाद। इसके मुकाबले में आप कंपेयर कर लें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ कोयटा, पीपल ऑफ सरगोदा, पीपल ऑफ गुजरांवाला, ठीक है ना। तो बहुत सारी कल्चरली कुछ चीज़ें होती हैं जो डोमिनेट कर रही होती है। जैसे गुजरांवाले के लोगों को मोस्टली यही समझा जाता है कि ये बहुत खाते हैं, नो डाउट कि काट नहीं कर दे, तो वाकई खाते पीते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें, उनका ट्रेंड यही बना हुआ है। अब इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है, सिविलाइज्ड हैं, डिसेंट हैं, काम से काम, ठीक है, ठीक हो क्या। तो हर चीज़ में वो एक तरह के रोल मॉडल होते हैं बाकी लोगों के लिए भी, ठीक है। 2 लोग वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे, जो उनका फैशन ट्रेंड देखते हैं वही अडॉप्ट कर लेते हैं लोग। ऐसे ही लाहौर में होता है, ऐसे कराची के साथ हो रहा होता है, ऐसे इंडियन सिटीज़ के साथ भी हो रहा होता है, स्पेशली फॉर द ट्रेंड्स रिलेटेड टू द गर्ल्स। तो सिटी और एक शहर में मौजूद कुछ टाउन जो होता है, अब सिटी हाउसिंग स्कीम का जो कल्चर, जो एथिक्स वहाँ पे डेवलप होंगे, मेरा ख्याल है वो कहीं मशीन वाला 1, 2 में तो शायद ना हो, या जो मशीन वाला 1 या 2 में होंगे वो सिटी में ना हो सकता है वहाँ पे भी ना हो, ठीक है। वहाँ पे बड़े अच्छे आइडियल हो सकते हैं। और ये कंट्री टू कंट्री भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और नेशनल इंटरनेशनल हीरोज़ के बारे में जो आपका बिहेवियर और एथिक्स होते हैं, देखें, हीरो ऑफ वन नेशन जो होता है वो आपका एनिमी भी हो सकता है, और दूसरी कौम का जो एनिमी है वो आपका हीरो भी हो सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की टस में भी देख लें, तो ये भी सारे एथिकल मैटर्स होते हैं ना। फिर नाम्स होती हैं, नाम्स ट्रेडिशंस के बारे में आप क्या सोचते हैं। और फिर मिथ्स होती हैं, मिथ्स क्या होती हैं, डिफरेंट माइथोलॉजीज़। देखें, आप इंडिया की आ जाएँ, इंडियन माइथोलॉजी है,
क्योंकि वहाँ से आपको क्लियर होगा, ठीक है। जो वो बातें करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द हनुमान। हनुमान क्या जी, वो आया जनाब, उसने एक लश्कर लेके आया, तो सीता और फलां उनकी हेल्प की, तो जनाब उसको श्रीलंका के राजा, लंका के राजा रावण को मारा और विक्ट्री के बाद वापस आए, ठीक है। फिर उनके त्यौहार फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए ये एक इंडियन माइथोलॉजी है, दैट आर द बिगेस्ट मेजर पार्ट ऑफ इंडियन रिलीजन, ठीक है। वो इसको एज अ ट्रू मानते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रीक माइथोलॉजीज़ भी हैं, ठीक है, कि जनाब फ़लाँ जो ग्रीक गॉड था वो ज़मीन से उठा, आसमानों पे गया, 7वें आसमान पे गया, फ़लाँ मिला, सूरज को मिला, फ़लाँ देवता को मिला, ठीक है। तो इस तरह की स्टोरीज़ भी होती हैं। लेकिन मसला ये कि हम तो नहीं मानेंगे, हम कहेंगे भाई बीइंग मुस्लिम वी डोंट नो, वी हैव नो प्रूफ अबाउट द रियलिटी ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन जो उस रिलीजन वाले होंगे वो मान लेंगे। तो फिर एथिकली ये चीज़ भी आ जाती है कि कोई चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होती किसी कल्चर की, लेकिन उस कल्चर के लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। यानी कि वही एक बंदा उनका हीरो होता है, हमारे यहाँ वो बंदा कोई हीरो नहीं। जैसे अब मंकी की ट्रीटमेंट ले लें, इंडियन साइड पे मंकी जो है इज़ ट्रीटेड एज अ गॉड, और हमारे यहाँ मंकी बेचारा एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है ना। तो ये सारा चीज़ें होती हैं, कल्चर टू कल्चर, नेशन टू नेशन, नाम्स भी डिफरेंट होती है, माइथोलॉजीज डिफरेंट होती है, एक का हीरो दूसरे का दुश्मन भी हो जाता है, लाइक दैट। उसके बाद लास्ट इसके अलावा कल्चर में एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है, एग्जांपल चाइना, रिटर्न अ पैनी। यानी कि ये एग्जांपल भी है कि इफ़ चाइनीज़ आर परचेजिंग समथिंग, इवन इफ़ द सिंगल पैनी इज़ टू बी रिटर्न, तो वो उसको सिंगल पैनी भी, एक पैसा भी वापस देंगे। और हमारे यहाँ 5 रुपये भी बाकी बचे ना, तो उसको एक कैंडी दे देते हैं। वो नाना पार्टिकल की एक फ़िल्म के सीन की तरह, जब वो मॉल में जाकर चीज़ लेता तो वो ना कैंडी उसको दे देता है इंस्टेड ऑफ गिविंग। तो वो वहाँ पे एक सीन क्रिएट करता है। तो ये चाइनीज़ कल्चर है कि वो आपको एक सिंगल पैनी, एक पैसा भी है आपका, तो वापस तो आपको वही वापस करेंगे, राइट। तो दैट इज़ देयर कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, now we shall discuss the third point, that is philosophy, right. Third point of our second topic. In philosophy there are different things for different nations, for different people. There are different philosophical traditions, philosophical norms, and first of all, some nations, some people are following descriptive ethics. Descriptive ethics means narrative, in which fact about the moral judgment of the people are discussed, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट मॉरल जजमेंट। मॉरल जजमेंट मीन्स कि इन डिफरेंट सिचुएशंस हाउ दैट पीपल्स आर मेकिंग डिफरेंट जजमेंट्स। एक्चुअली मॉरल जजमेंट जो होती है ना, मॉरल जजमेंट ये होती है आपकी अखलाकियात की बेस पे। जैसे आप एक स्टोरी को पढ़ते हुए उसका बाद में मॉरल निकालते हैं ना, मॉरल ऑन द बेस ऑफ एथिक्स, ऑन द बेस ऑफ सिचुएशन, तो सेम इज हियर। नंबर 2 है नॉर्मेटिव एथिक्स। एक्चुअली नॉर्मेटिव एथिक्स आर स्टैंडर्ड आर द नॉर्मल। स्टैंडर्ड आर द नॉर्मल मीन दैट आर स्टैंडर्ड इन अ सोसाइटी, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है, सम टाइम इन सोसाइटी, इन डिफरेंट टाउन, इन डिफरेंट ग्रुप, इन डिफरेंट पीपल्स, डिस्कवरिंग, फार्मुलेटिंग एंड डिफाइनिंग फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल, कि वहाँ पे वो फंडामेंटल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो हासिल करते हैं, उसकी मालूमात लेके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, उस पर वो चलते हैं, ठीक है, जो बेसिक है। तो ओके, द नेक्स्ट इज थियोलॉजिज्म। एक्चुअली थियोलॉजिज्म इज रिलेटेड टू द रिलीजन। वट वुड गॉड हैव मी डू इन दिस केस, कि खुदा ने मेरे लिए इस केस में क्या किया है, या खुदा मेरे लिए क्या करेगा। यानी कि बिलीव इन गॉड, कि हाउ गॉड विल हेल्प मी, हाउ आई विल सीक द हेल्प ऑफ गॉड, लाइक दैट। ओके, वी वर डिस्कसिंग थियोलॉजिज्म। एक्चुअली थियोलॉजिज्म इज़ रिलेटेड टू योर बिलीफ विद गॉड। देखिए कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गॉड पे बड़ा बिलीव होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हु आर लाइक द सेकुलर पीपल, दे डोंट हैव बिलीव इन गॉड। तो ये भी सारा मामला पर्सनल एथिक्स के बारे में होता है। एक बंदा हर काम के लिए गॉड का नाम लेके शुरू करता है, एक बंदा बिल्कुल कोई गॉड का नाम नहीं लेता, लाइक दैट। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी सोसाइटीज़ भी होती हैं, ठीक है। यूरोपियन साइड पे चले जाएं तो दे आर मोस्टली विदाउट गॉड, ठीक है। किसी मुसीबत में उनको गॉड याद आ जाता है, वरना उनको सारी ज़िंदगी गॉड याद नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है यूटिलिटेरियनिज्म। एक्चुअली यूटिलिटेरियनिज्म जो है ना, दैट इज़ अ फिलासफी गिवन बाय इटालियन फिलासफर, हिज नेम वाज मैकियावेली। जब उसने अपनी बुक लिखी थी ना, द प्रिंस, एंड द प्रिंस इज़ वेरी फेमस बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के सब रूलर्स किंग्स ने वो बुक पढ़ी होती है, द प्रिंस उस बुक का नाम था। उसमें उसने यूटिलिटेरियनिज्म की एक फ़िलासफ़ी दी थी कि जनाब बस सब कुछ दुनिया में यही कुछ है कि फ़ायदा उठा लें, जितना फ़ायदा हो सकता है बाद 1.5 साल। जिसे फिर उसके बाद एपिक्यूरियस थ्योरी आ गई कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, देयर इज़ नथिंग टुमारो। खा पी लो, मर लो खा पी के, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, बीइंग मुस्लिम द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, बीइंग हिंदू सिचुएशन माइट बी डिफरेंट, बीइंग क्रिश्चियन सिचुएशन माइट बी डिफरेंट, और बीइंग सेकुलर सिचुएशन माइट बी वेरी डिफरेंट।
क्योंकि उनका कोई ऐसा बिलीव नहीं है और यही उनका धोखा डिसेप्शन है गिवन बाय द सैटर्न। ओके, द टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को हम यही कहते हैं टाइप्स ऑफ टेलियोलॉजी। ठीक है, मेन टेलियोलॉजी मीन्स मैक्सिमम गुड फ्रॉम द मैक्सिमम पीपल, कि मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है अपने मैक्सिमम लोगों से, बस दैट्स ऑल। जैसे एक मैनेजर की डेफिनेशन होती है ना, टू डेफिनेशन ऑफ अ मैनेजमेंट इज़ टू गेट थिंग्स डन थ्रू द पीपल। लेकिन वहाँ पे चलो फिर भी बात और होती है, वहाँ पे रिवार्ड भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कि फ़ायदा मैक्सिमम उठा ले मैक्सिमम लोगों से। ठीक है, इस चीज़ को मटीरियलिस्टिक अप्रोच, विच वन स्टूडेंट, मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो होती है ना, कहते हैं ना फ्रांस जो है ना वो बड़ा मटीरियल है, मटीरियलिस्टिक है, तो वो मटीरियलिस्टिक मीन कि ही आर शी इज़ यूटिलिटेरियनिस्ट। ठीक है, वो यूटिलिटेरियनिज्म का विक्टम है। और यहीं से एक कंसेप्ट आपका इकनॉमिक्स का भी निकला हुआ है ना, यूटिलिटी वाला, यूटिलिटी से आप इस्तेफादा कहते हैं। ठीक है, इकनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट में शामिल है यूटिलिटी, राइट। उसके बाद है डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी होता है एथिकल फिलासफी। ठीक है, एथिकल फिलासफी में होता है कि आप ऑलवेज ट्रूथ, हमेशा आप सच बोलें, वट एवर इज़ द सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें हैं फिलासफी के अंदर, ये डिफरेंट फिलासफीज हैं फॉर द डिफरेंट रिलेशन, डिफरेंट नेशंस। कि कोई नेशन जो है ना वो डेस्क्रिप्टिव एथिक्स पे चलती है, कोई लोग जो वो नॉर्मेटिव एथिक्स को फॉलो करते हैं, कोई जो है ना वो थियोलॉजिज्म वाले लोग होते हैं। ठीक है, बिलीवर्स हो सकते हैं वो लोग, गार्ड के बारे में चलने वाले, नॉन बिलीवर्स भी हो सकते हैं क्योंकि उनके भी गार्ड्स होते हैं अपने बने हुए। ठीक है, फिर यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलासफी है, जो टेलियोलॉजी की फिलासफी, उस पर भी चलते हैं लोग, नेशंस भी चलती हैं। ठीक है, डियंटोलॉजिस्ट भी होते हैं लोग जो हमेशा सच की तलाश में रहते हैं, सच ही बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक दैट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इन दिस इज लॉ। लॉ जो है ना, लॉ डिफरेंट, लॉ मीन्स लॉज ऑफ डिफरेंट नेशंस, नॉट ऑलवेज राइट, हमेशा ये राइट नहीं होते, हमेशा बिल्कुल आपको मतलब के बेनिफिट्स नहीं दे रहे होते। फॉर एग्जांपल टैक्सेस ऑफ वार, वार में कोई बिजनेस नहीं चलता, कोई इनकम नहीं बचती, लेकिन उस दौरान भी टैक्स लगते हैं, याद रहे। तो फिर वो टैक्स पे कौन करेगा? ठीक है, ठीक है, वो जबरी टैक्स होते हैं, जो वार टैक्स होते हैं, वार टैक्स जिसे जंगी टैक्स भी कहते हैं, वो लगते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जस्ट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ अ वार। तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ रिलीजन, ऑलवेज मेजर फाउंडेशन फॉर द एथिकल बिहेवियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली रिलीजन, ऑलवेज अ मेजर फाउंडेशन, ऑलवेज अ मेन थिंग, मेन बेसिक फंडामेंटल्स फॉर एथिकल बिहेवियर। हमें एथिकल बिहेवियर स्टूडेंट सिखाता ही हमारा रिलीजन है, वट एवर इट इज़। हमें बहुत सारी चीज़ें हमारा रिलीजन इस्लाम सिखाता है, क्रिश्चियंस को बहुत सारे एथिक्स जो है ना उनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी जो है वो सिखाती है, यहूदियों को उनका जूइज़म सिखाता है, हिंदू को उनका हिंदुज़म, उनका हिंदू रिलीजन सिखाता है कि किस एथिकल कोड्स को आपने फॉलो करना है। वो कोड्स क्या हो सकते हैं? वो ह्यूमन वेलफेयर वाले भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने वाले भी हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले भी हो सकते हैं, सच बोलने वाले भी कुछ भी हो सकते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। मैनी ऑफ द मेन स्ट्रीम रिलीजन्स प्रोवाइड द एथिक्स। जो मेन स्ट्रीम रिलीजन्स हैं, दुनिया के लीडिंग रिलीजन्स हैं, वो एथिक्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट वंस ड्यूटी टूवर्ड गॉड, आपके खुदा के बारे में जो फ़राइज़ है उनकी तरफ भी, अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे इंसानों के लिए, फेलो बींग्स के लिए भी एथिक्स सिखाते हैं कि उनके साथ यू हैव टू बिहेव गुड, एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, और पूरी ज़मीन पे भी मौजूद जो अर्थ पे जो लिविंग चीज़ें हैं, जो उनके बारे में भी अच्छा रहने के बारे में, उनके बारे में अच्छे अखलाकियात रखने के लिए, उनके बारे में भी काइंड रहने के लिए भी आपको सिखाया जाता है। देखिए, टू बी काइंड और टू बी क्रूअल, ये दोनों चीज़ें ही एथिक्स से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखा रहा था? रिलीजन। और रिमेंबर दिस थिंग, द मेन बेस फॉर एथिक्स इज़ रिलीजन। रिमेंबर दिस थिंग, इसके अलावा कोई चीज़ उसकी फंडामेंटल्स नहीं बन सकती। फाउंडेशन ऑफ एथिक्स है ही रिलीजन। जितना रिलीजन जिसका स्ट्रांग होगा, ट्रू होगा, उतने ज़्यादा उनके अंदर एथिक्स और फंडामेंटल या फाउंडेशंस होंगी। एंड ओके, द थर्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन अंडर द बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ethical issues is communication and ethical issues. Means here we have to see, and before is point number 1 and the point number 2 was the general discussion on the topic, and this is the main topic. Remember this point, students, this is the main topic, and so listen it very carefully. Organizational challenges include developing a productive company culture with employees have the diverse background, values and the beliefs. यही चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कशन में करके आए हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डेवलप अ प्रोडक्टिव कंपनी कल्चर, कि कंपनी के अंदर एक प्रोडक्टिव कल्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, जिसमें सब मिल के एक लाइक अ टीम वर्क एफर्ट्स पुट करें इन अ पीसफुल वे, इन अ गुड वे, इन अ गुड मॉरल आर एथिकल वेज, वट एवर आर द पीपल देयर, जिस मर्जी कल्चर के हैं, लेकिन उनके अंदर एक अच्छी प्रोडक्टिव कंपनी कल्चर डेवलप करना। एंड दिस आइडियल प्रोडक्टिव कंपनी कल्चर आप देख सकते हैं कभी भी यूएई में जाके, अरब कंट्रीज़ में जाके, वेस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि हाउ प्रोडक्टिव कंपनी कल्चर
हैज़ बीन डेवलप्ड देयर बिटवीन द पीपल ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे होती, एज वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन आर कंट्री इन इंडिया एंड लाइक दैट, वहाँ पे नहीं होती। रिमेंबर दिस थिंग विद एम्प्लॉयज़, ठीक है, हैविंग डिवर्स बैकग्राउंड, जितनी मर्जी उनके कल्चर बैकग्राउंड आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो, जितने मर्जी क्लैशेज हों, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ करके सब उनको एटमॉस्फेयर ऐसा दिया जाता है कि दे आर जस्ट टू वर्क, तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसमें बच्चों बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर 1 दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लीगल इशूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेपरेट चैप्टर भी है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो अब मैं यहीं पे करूँगा इसको। उसके बाद की एरियाज़ ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन, उसके की एरियाज़ कौन से हैं, एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड वन। ओके, legal issues. Business communication, when we are doing there, it involves different legal issues. First of all, I will tell you different examples, then I will go ahead. So different discussions and that words of our ties, words of our talks can involve legal issues anytime. तो be very careful. तो legal issues में बच्चों सबसे पहला जो प्रॉब्लम है that is defamation. Defamation is derived from the word डीफेम। डीफेम का मतलब होता है किसी की फेम को डैमेज करना, ठीक है। फेम को डैमेज करने के लिए आप यही या किसी के खिलाफ स्पीच कर सकते हैं, इट विल इन्वॉल्व लीगल इशू। कहता स्टेटमेंट्स दैट डैमेज पर्सन नेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जो किसी पर्सन की नेम को डैमेज करे एंड रिप्यूट को, ठीक है। जैसे हम कहते हैं फ्रांस जो जहाँ पॉलिटिकल लीडर ही इज़ अ थीफ, अगर वो कोर्ट में चला जाए कि भाई ही सेड मी अ थीफ एंड नाउ कम एंड प्रूफ, तो हाउ विल यू प्रूफ, तो वहाँ पे आप झूठे पड़ेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट, तो बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव, ठीक है। इन्वॉल्व फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आप गलत स्टेटमेंट दे देते हैं तो उससे भी लीगल इशूज़ को वो इन्वॉल्व करेगी। भाई कोई भी जिसके खिलाफ आप गलत स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ आज शख्स ने ये किया है, ठीक है, फ़लाँ शख्स ये कर रहा है, अगर वो सुन ले और केस कर दे तो यू हैव टू प्रूफ, आप फंस जाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, सो बी वेरी केयरफुल। तो डेफेमेशन सॉरी दो तरह से है, वन इज़ लाइबल एंड सेकंड इज स्लैंडर। लाइबल डेफिनेशन इज़ नोन एज रिटन डेफेमेशन, कि इन रिटर्न फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न टेक्स्ट आप किसी को डीफेम करते हैं। स्लैंडर होती है आपकी ओरल डेफेमेशन विद स्पोकन वर्ड्स। देखें, यू आर ऑन अ फेसबुक, वहाँ पे एक पोस्ट के नीचे आप कमेंट कर देते हैं, तो ये कमेंट करते हैं और गलत करते हैं और जानबूझ के करते हैं, तो दिस विल बी लाइबल। यू आर ट्राइंग फॉर द रिटर्न डेफेमेशन, कोई भी उसके खिलाफ आपके कोर्ट में जा सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, वहाँ पे आपके कमेंट्स जाएंगे एंड नो वन विल डिमांड एनी एविडेंस। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आ जाते हैं तो इंस्टेंटली आप माने या ना माने आपके अगेंस्ट फैसला हो जाता है फौरी तौर पे। जब एक चेक का आपका डिसऑनर होता है तो उसमें भी यही होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, लिखा हुआ होता है, आपके साइन होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर आपसे आर्गूमेंट्स नहीं लिए जाते, फिर आपके अगेंस्ट फैसला होता है। एंड द सेम थिंग विल हैपन अगेंस्ट द चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेरी सून। वो जो उनके भी इस तरह के केसेस है ना बैंकों के, वहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इनके अगेंस्ट है, तो फैसला इनके खिलाफ ही होना, आज हो 2 साल बाद हो, जब मर्जी हो। तो ओरल में भी होता है कि आप ज़बानी बोल के करते, जिसे सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं किसी के अगेंस्ट तो लीगल इशू इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आप पे फाइल केस हो सकता है, माफ़ी मांग के जान छूट सकती है आपकी या सज़ा लेके छूट सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। उसके बाद है थर्ड थिंग प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन्स किसी की प्राइवेसी है, प्राइवेट बात है, प्राइवेट चैट है, प्राइवेट पिक्चर्स हैं, उसको आउट करना। कोई भी प्राइवेट मटेरियल को दैट इज़ वेरी सेंसिटिव, उसको आउट करना जो है ना, दैट इज़ आल्सो इट इन्वॉल्व लीगल इशू एंड इट इज़ द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। देखिए व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप आपको आपकी प्राइवेसी ही इंश्योर करता है कि जनाब ये इसका डेटा किसी के पास नहीं जाएगा, इवन नॉट द गवर्नमेंट और द इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर यू आर यूजिंग। उनका उसकी एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है, वो सीधा कंपनी के पास जाता है, बस उससे ले ले जिसने लेना, वो भी नहीं देते किसी को। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। फेसबुक का डेटा जो पूरी दुनिया के पास जाता है, हर किसी के पास होता है, हर इंस्टीट्यूशन हर अदारे के पास होता है, FIA के पास होगा, ISI के पास होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होगा। व्हाट्सएप का डेटा याद रहे किसी के पास नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा प्राइवेसी उन्हें रखी हुई है। हाँ, बाकी जो एप्लीकेशन है उनकी प्राइवेसी का लेवल क्या होगा वो डिफरेंट चीज़ें होती है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए प्राइवेसी में ये भी आता है कि आपकी विदाउट कंसेंट ऑफ एनीवन एल्स आप किसी की वीडियो भी नहीं बना सकते। अगर होता है ना कि फ़लाँ की वीडियो आ गई और वो बंदा दलेर होकर अगर उस पर ही केस कर देना कि भाई हाउ ही डिड इट विदाउट माई परमिशन, तो वो बंदा फंस जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ब्लैकमेल होने की वजह उल्टा वो फंस जाएगा। तो प्राइवेसी में यहाँ तक भी होता है और बड़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। वाइफ हस्बैंड की प्राइवेसी, उस पर अगर कोई अटैक करता है तो ये भी एक लीगल इशू है जिसकी उसको सज़ा भी हो सकती है और लाज मौजूद होते हैं, साइबर लाज भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन एंड harassment, डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ऑन द बेस ऑफ नेशन, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, ठीक है, इस पर भी ये भी लीगल इशू बनता है। उसके बाद harassment है, किसी लड़की को हरास करना, किसी खतून को जाते हुए किसी बच्चे को हरास करना, डराना धमकाना, ये सारी चीज़ें लीगल इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, देयर वाज अ वन वेरी इंटरेस्टिंग केस इन यूरोपियन कंट्री, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद, वहाँ पे केस ये था कि लड़की ने कहा जी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है फेसबुक के ऊपर, वो कोर्ट में चली गई कि मैं इसे जानती नहीं, ये मुझे नहीं जानता, हाउ डेयर ही सेंड मी अ फेसबुक रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सिर्फ उस रिक्वेस्ट की बेस पे हरासमेंट का केस उस लड़की के हक़ में डिसाइड हुआ। उसने कहा जी मुझे इसने ये चीज़ ने भी मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, मैं सोचती रही हूँ बैठ के कितने दिन कि ये कौन है, मुझे इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी क्यों है, जब मैं इसको नहीं जानती, ये मुझे नहीं जानता, क्यों आई है फ्रेंड रिक्वेस्ट इसकी, और उस शख्स के अगेंस्ट उसको सज़ा होती है इसकी भी। तो ये हरासमेंट का मामला इंतहाई सख्त है। आप सीधी सी बात, आप किसी लड़की को, बच्चों डोंट माइंड, गर्ल्स माइंड नहीं करना, इसको समझना, किसी लड़की को घूर के भी देख लेना, एक लड़की को आप विंक भी करते हैं, आँख भी मार दें, तो ये भी, इस पे भी केस होता है। रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, किसी खतून को जाहल कह देना, बदतमीज़ कह दे तो केस नहीं होता, इसके अलावा उसको अब्यूज़ कर दें, कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ कर दें तो वो आपको कोर्ट में घसीट सकती है। रिमेंबर दिस थिंग लीगली, इस पे लॉज मौजूद है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। मुस्कुरा के भी देख लें किसी की तरफ, किसी लड़की की तरफ, विदाउट हर कंसेंट, तो याद रखना दिस इज़ आल्सो इन हरासमेंट। रिमेंबर दिस थिंग, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। नॉट हेयर, इवन इन द लिबरल सोसाइटीज़ ऑफ यूरोप एंड द अमेरिकन कंट्रीज़, याद रखना। हालांकि वहाँ पे कितनी आज़ादी है लड़कियों को, सब कुछ, लेकिन वहाँ पर भी हरासमेंट के रूल्स इतने कुछ सख्त हैं कि यू कैन नेवर इमेजिन इवन। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म होता है कि यू हैव एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने एक आर्टिकल लिखा, आपने एक टॉपिक लिखा, आपने एक रिसर्च पेपर लिखा है, तो कोई दूसरा उसको अपने नाम से चेंज करके उसको पब्लिश करवा ले, राइट। तो दिस थिंग इज़ नॉट अलाउड। इसे हम कहते हैं थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की भी है ना, आपकी, उसको चोरी नहीं कर सकते आप, उसको अपने नाम से पब्लिश नहीं करवा सकते। इफ़ यू विल डू इट तो समवन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू। तो जब आप असाइनमेंट्स भी बना रहे होते हैं ना कॉपी पेस्ट करके, तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ही थीफ कर रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं, किसी की स्टील कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। जब आप उसकी किसी दूसरे का वर्क लेके अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके बिल्कुल उसका प्लेजरिज्म ज़ीरो कर दें, प्लेजरिज्म क्या कर दें, उसका ज़ीरो कर दें, या 10% अलाउज होता है अक्सर, हमें सम टाइम हमें वो 20% भी अलाउ होता है, तो उतना कर देंगे तो वो आपका प्रॉपर्टी बन जाती है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। ये रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद है कॉपी राइट्स। कॉपी राइट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, आपके टेक्स्ट के भी कॉपी राइट होते हैं, बुक्स के भी कॉपी राइट्स होते हैं। तो फिर कोई भी शख्स, कोई भी बंदा उस कॉपी को, उस बुक को, उसका कोई भी हिस्सा विदाउट प्रायर परमिशन उसको पब्लिश नहीं कर सकता। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये है कॉपी राइट का इशू। ये सारे लीगल इशूज़ जो है ना, ये दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट भी मिलनी है एट द एंड कि आपने लीगल इशूज़ पे असाइनमेंट बनाए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें, राइट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द लीगल इशूज़, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं प्लीज़। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस की एरियाज ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन। मीन्स के डिफरेंट की एरियाज हैं कौन से, कहाँ कहाँ पे हमने एथिकल कम्युनिकेशन को डिस्कस करना। ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड वन थिंग कि जो आपका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द डिस्कशन, राइट। तो इसमें पहले में हमने वी हैव डिस्कस लीगल इशूज़, नाउ वी आर डिस्कसिंग की एरियाज ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन के कहाँ कहाँ हमारी एथिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है। नंबर 1, रिटन एंड स्पोकन मैसेज में भी, क्रॉस कल्चर मैसेज में भी ऑलरेडी आई हैव मेंशन, एंड एडवर्टाइजिंग मैसेज में भी, जो आप कमर्शियल चलाते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, उनमें भी हमारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन, वी हैव टू डिस्कस दैम। अच्छा जी, रिटन एंड द स्पोकन मैसेज, मैसेज पर्पस। नंबर 1 रिटन मैसेज और स्पोकन मैसेज में, नंबर 1 मैसेज पर्पस आर देयर एनी हिडन एजेंडा, अगर उसमें कोई हिडन एजेंडा है, विल इट बी इन फेवर ऑफ रिसीवर, क्या वो रिसीवर की फेवर में हिडन एजेंडा, ठीक है। आपको एक मैसेज मिलता है, ओरल मैसेज मिलता है, कहीं पर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है कि पढ़ें जी, इसका मतलब समझें, ठीक है। तो उसके पीछे पर्पस क्या होता है उसको भी समझिए। अगर तो वो फेवर में है रिसीवर की तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है फेवर में तो डेफिनेटली दैट इज़ फॉलिंग हिडन एजेंडा। तो वहाँ पे भी एथिकल इशू इन्वॉल्व हो जाता है कि आप भाई ओपन रहें, क्लियरली मेंशन करें जो भी आपका पर्पस है, ठीक है। देखिए आप किसी को कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, राइट, तो आप उसे कहते हैं भाई इसकी ये प्राइस है। अब उसमें हिडन एजेंडा क्या है आपका कि भाई वो चीज़ जो है ना दैट हैज़ बिन आउट ऑफ ऑर्डर, उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया, फॉल्ट है, और आप हिडनली ये चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड को, ख़रीदने वाले को ये पता ना चले, लेकिन मेरी जान छूट जाए और उसकी जान फंस जाए, वो ख़रीद ले इसको,
ठीक हो गया। तो इस तरह का हिडन एजेंडा तो होता है ना, ये एथिकली ठीक नहीं होता ये चीज़ भी। उसके बाद है रिसर्च मेथड। आर द रिसोर्सेज रिसेंट, रिलायबल आर अनबाइस, कि क्या रिसर्च मेथड के थ्रू आपने अगर कोई चीज़ को रिसर्च किया, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो देख लें कि रिसोर्सेज रिसेंट हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, रिलायबल हैं, ठीक है वो, और अनबाइस नहीं है, कहीं पे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन किसी शय के अगेंस्ट नहीं बायस होकर चढ़ाई हुई इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड की हुई, तो ये भी वेरीफाई कर लें। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल को सिलेक्ट कैसे आपने करना है। इज़ एनीथिंग इंपॉर्टेंट ओमिटेड, क्या उसमें से हर चीज़ इंपॉर्टेंट उसमें से निकाल दी गई हुई है या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए अगर आपने असाइनमेंट भी बनानी है तो आप यही देखेंगे ना कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो किसी ऐसी साइट से लेंगे ना, ऐसी जगह से जहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद भी हो, निकली ना हो उसमें से। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, यूज़ ऑफ रीजनिंग एंड द लॉजिक्स। आपने आइडियाज़ को डेवलप कैसे करना है, उसके लिए आप रीजनिंग यूज़ करें, उसकी रीजंस बताएं, उसके लिए जो भी उसका बेनिफिट्स बनते हैं वो बताएं, और प्रोपेगेंडा टेक्निक्स है उनको भी देख लें, या उनको अगर आप एथिकली देख लें मैटर्स को तो प्रोपेगेंडा टेक्निक्स बिल्कुल यूज़ ना करें। ट्राई टू प्रोवाइड द रियल फैक्ट्स, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन के यही बिजनेस एथिक्स हैं कि बिल्कुल झूठ ना बोलें, जो रियल फैक्ट्स हैं, रियल स्टोरीज हैं, रियल इन्फॉर्मेशन है, दैट यू हैव टू प्रोवाइड। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, and in cross cultural message, here you have to see different cultural context, cultural background, जैसे हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, किसी भी कल्चर की से मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई आप एडवांटेज ना लें। होता है ना किसी कल्चर में एक चीज़ के बारे में झूठ को बुरा समझें, झूठ का लोगों को पता ही नहीं, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो कल्चरली वी आर नॉट अलाउड कि ड्यू टू अ कल्चरल डिफरेंस अ नेशन इज़ बैकवर्ड इन देयर कल्चर, इट डजेंट मीन कि यू विल स्टार्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर बैकवर्डनेस रिगार्डिंग द कल्चर। तो ऐसा काम आपने नहीं करना। दूसरा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है ना, जिसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो इसको भी देखें। आपने जो वर्क करना है दैट विल बी इन द कल्चरल फ्रेम, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंडर करें। दूसरा उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना रिगार्डिंग द कल्चर, ये बिल्कुल क्रिएट ना करें, ना अपनी तरफ से करें ना दूसरों की तरफ से देखें, किसी किस्म की भी। इसके लिए जैसे हमने एग्जांपल दी थी आपको यूएई में कंपनीज़ की, कि वहाँ पे कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो वहाँ पे आप अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को, रिलीजियस इशू को, यू विल नॉट लेट टू क्रिएट अ कन्फ्लिक्ट, टू क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना आपने। लैंग्वेज है, ये भी हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है इसको, कि लैंग्वेज की सुप्रीमेसी जो होती है, लैंग्वेज की जो बर्तरी होती है, उसकी बेस पे भी आप कोई कल्चरल इश्यूज़ ना बनाएं कहीं पे भी, ठीक है। ट्राई टू रेस्पेक्ट द कल्चर ऑफ अदर्स, ट्राई टू रेस्पेक्ट द लैंग्वेज ऑफ अदर्स, और हर लैंग्वेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। रिमेंबर दिस, इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज़ वेल रिगार्डेड एंड वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसकी रिप्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही होगी। रिमेंबर दिस थिंग। उर्दू लैंग्वेज जो है ना, हिंदी लैंग्वेज को जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो उस रीजन में उसकी रिगार्ड होगी, आउट ऑफ दैट रीजन उसकी कोई रिगार्ड नहीं होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, वहाँ पे आपको उस लेवल की लैंग्वेज का ही रिगार्ड करना पड़ेगा। दूसरा था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी भी एक क्रॉस कल्चरल इशू है। डिफरेंट नेशंस में अकाउंटेबिलिटी का पर्पस, अकाउंटेबिलिटी का तरीका, मेथड डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में देख लें नैब मौजूद है, और नैब कितना आला काम कर रहा है माशाल्लाह, वो भी आप सबके सामने ही है कि आज तक किसी को सजा नहीं दे सका, किसी बड़े मगरमच्छ को, ठीक है। तो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में भी अकाउंटेबिलिटी का मैटर होता है। कुछ नेशंस में अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सिस्टम ही कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कल्चरली भी डिपेंड करती हैं डिफरेंट पे, तो सिचुएशन भी डिफरेंट इसमें हो जाती है सम टाइम। उसके बाद है जी एडवर्टाइजिंग मैसेज, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। इन एडवर्टाइजिंग मैसेजेस में व्हाट वी हैव टू सी, इसमें हमने देखना है कि हम जब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो उसमें हमने किन चीज़ों को माइंड में रखना है। नंबर 1, गेनिंग कस्टमर्स थ्रू फॉल्स एडवर्टाइजिंग इज़ बोथ अनलॉफुल एंड अनएथिकल, ठीक है। ये याद रहे कि गलत इन्फॉर्मेशन दे के कस्टमर्स को अचीव करना, कस्टमर गेट करना जो है ना, दैट इज़ अनएथिकल एंड अनलॉफुल, ठीक है जी। तो यहाँ पे हेयर आई विल टेल यू अ स्टोरी दैट विल क्लैरिफाई दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट थिंग इज़ नो नीड टू प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन योर एडवर्टाइजमेंट, तो इट इज़ अनलॉफुल एंड अनएथिकल एज वेल एज। नंबर 2, डोंट कन्फ्यूज़ कंज्यूमर्स, अपने कंज्यूमर को बिल्कुल कंफ्यूज ना करें, तो उनको बिल्कुल एज इट इज़ फैक्ट्स और रियल चीज़ जो वो बताएं और वही उनको प्रोवाइड करें। इसके लिए फॉर एग्जांपल, दिस इज़ नॉट अ पॉइंट नंबर 3, एग्जांपल ये है कि वाइट क्रिसमस, ठीक है जी। अब वाइट क्रिसमस ये जो भी एक टर्म वो यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए फैट फ्री, कोई भी चीज़ वाइट क्रिसमस हो ही नहीं सकता,
और फैट फ्री कोई भी चीज़ दुनिया की फ़ैट फ्री नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें फ़ैट होता है, ठीक है। लो फैट, या आप ये देखें जो लिखा था हेल्दी 100% नेचुरल फ्रूट जूस, देखिए रिमेंबर दिस थिंग वाई मोस्टली इट हैज़ बीन मैंशनड 99.99, बिकॉज 100% जो है ना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रोवाइड ना करें। अवॉइड शोइंग नेगेटिव टू द स्पेसिफिक ग्रुप, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में नेगेटिव बात बिल्कुल ना करें, उसके एडवर्टीजमेंट में भी बिल्कुल, तो ऐसी चीज़ को बिल्कुल ना करें। दूसरा लैंग्वेज, नो एग्जेजेशन, उसमें बिल्कुल कोई एग्जेजेशन ना यूज़ करें, कोई एग्जेजरेटेड लैंग्वेज होती है ना, एग्जेजरेटेड लैंग्वेज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जस्ट टू बूस्ट ऑफ समवन, जैसे किसी वार के दौरान जो वार एंथम्स होते हैं उसमें एग्जेजरेटेड लैंग्वेज यूज़ की जाती है जस्ट टू वार्म अप द ब्लड ऑफ सोल्जर्स, उनको तैयार, इस तरह की एड में भी आप लैंग्वेज यूज़ बिल्कुल ना करें। तो नेक्स्ट ethics and organization responsibility, and here ethics and organizational responsibility. Organizations are stronger than individuals, remember this thing. Individuals are nothing in front of organizations. Individuals आते हैं जाते हैं, organizations हमेशा अपनी जगह पे कंपनीज मौजूद होती हैं, वो काम कर रही होती है फॉर मैनी 100 ईयर्स, ठीक है। एम्प्लॉई आया 10 साल काम किया, 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, इंडिविजुअल्स करने के बाद मूव कर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं या दुनिया से पास हो जाते हैं, लाइक दैट। तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो इसको हमने डिस्कस करना है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एथिक्स। कंपनीज मस्ट डिटर्मिन वेदर द एथिकल वैल्यूज शुड बी सजेस्टेड फ्रॉम द टॉप डाउन और बॉटम अप, कि कहता है कंपनीज़ की ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसमें क्लियर इट शुड बी मैंशन कि जो कंपनीज की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह ट्रांसफ़र होनी चाहिए फ्रॉम टॉप डाउन, यानी कि टॉप मैनेजमेंट से नीचे बॉटम की तरफ, या बॉटम से अप की तरफ, यानी कि मोस्टली ये दोनों लेवल पे होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट शुड बी हाईली, दे हैव टू फॉलो डिफरेंट एथिक्स, एथिकल वैल्यूज़ को दे हैव टू पास, दे हैव टू फॉलो, और जो लोअर बॉटम या बॉटम पे या जो जूनियर्स हैं दे शुड फॉलो द एथिकल वैल्यूज़ एज वेल एज, दोनों ही को करनी चाहिए। इनको फॉलो करने के दो ही स्टूडेंट्स देखिए, नंबर 1 इज़ फॉर्मल वे एंड द नंबर 2 इज़ इनफॉर्मल वे। नाउ वी शैल डिस्कस बोथ वन बाय वन। फॉर्मल वेज में होता है कि वन ऑफ द कंपनीज कंसिडर्ड एज द लीडर इन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैज़ ensured that the highest paid salary is no more than 7 times to the lowest paid salary। इस पॉइंट को आपने समझना है। देखिए एथिक्स के लिए भी, देखिए रोल, टेक्नोलॉजी के लिए भी, स्टैंडर्ड्स के लिए भी, हमेशा कंपनीज के लिए कोई ना कोई कंपनी रोल मॉडल होती है। रिमेंबर दिस थिंग, विदाउट रोल मॉडल नो कंपनी विल वर्क इन दिस वर्ल्ड। कोई ना कोई कंपनी, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर कंपनी बनानी है तो आप किसी ना किसी कंपनी को फॉलो करेंगे एज अ रोल मॉडल। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि वन कंपनी इज कंसिडर्ड एज द लीडर इन एथिकली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज। तो कोई ना कोई कंपनी जो है ना एथिक्स में रोल मॉडल होती है दूसरी कंपनीज के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक ना सैलरी का जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। तो जो हाईली जो पेड कंपनीज होती है ना, वो सैलरी डिसाइड कैसे करती है, जिनको फिर बाकी कंपनीज फॉलो करती है। वो डिसाइड इस बेस पे करती है कि जो कंपनी सबसे कम पे दे रही है ना, फॉर एग्जांपल इफ़ अ कंपनी इज पेइंग 10,000 टू हिज मैनेजर, तो वो फिर एथिकली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो टॉप की कंपनीज, लीडिंग कंपनीज होती हैं, उनके एथिक्स क्या होते हैं, क्योंकि उन्हें डिसाइड किया होता है कि दे विल पे टू हिज मैनेजर, कितना वो पे करेंगे, मैक्सिमम 7 टाइम्स मोर देन द लोएस्ट पेड सैलरी। कि जो लो कंपनी, जो एक आम कंपनी अगर कम पे करती है ना अपने एम्प्लॉई को, अपने मैनेजर को, तो एक लीडिंग कंपनी अपने मैनेजर को उस कंपनी से 7 गुना ज़्यादा पे करेगी। यानी कि अगर एक कंपनी, लोकल कंपनी, बिल्कुल छोटी सी कंपनी आपको 10,000 पे कर रही है एज अ मैनेजर, तो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज़ के अंदर ये एथिक्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर ये बिजनेस एथिक्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं इनको, कि वो दे हैव टू पे, अगर वो आपको हायर करते हैं तो उनको आपको 70,000 पे देनी पड़ेगी। ये उनका स्टैंडर्ड होता है, उनके रूल होते हैं। और फिर यही वेल एस्टैब्लिश कंपनीज़ के रूल्स जो एथिक्स को दूसरी कंपनीज फॉलो कर रही होती हैं, जो अपने आप को ऊपर लेके आ रही होती हैं। नंबर 2, फॉर टॉप डाउन अप्रोच द एथिकल स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड इन द 3 टाइप्स। टॉप डाउन मीन्स जो पीछे हमने डिस्कस किया ना, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, टॉप बॉटम एंड टॉप बॉटम अप, राइट। तो कहता है ऊपर से नीचे जब ये मूव करते हैं तो उसके लिए कंपनीज भी 3 तरीकों को फॉलो करती है। पब्लिक मैसेज के लिए भी ज़ाहिर है,
ठीक है। पब्लिक मैसेज है तो पब्लिक के लिए मैसेज होगा, तो उसमें भी एथिक्स टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। पब्लिक मैसेज में डिवाइड होते हैं। एम्प्लॉइज़ मैनुअल में भी, पॉलिसी स्टेटमेंट में भी जूनियर्स सीनियर से जूनियर की तरफ ट्रैवल करते हैं। नंबर 3 मिशन स्टेटमेंट एंड एथिकल कोड्स जो होते हैं वो भी सीनियर से जूनियर्स की तरफ होते हैं, कि जूनियर्स जो होते हैं जितने भी जूनियर्स हैं सब दे हैव टू फॉलो ऑल दोज एथिकल कोड्स, एथिकल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दैट वन। तो याद है ये कंपनीज का भी एक एटमॉस्फेयर, जैसे घरों का एक एटमॉस्फेयर होता है ना एथिकली, कि एथिकली फैमिली जो बड़ी सुलझी हुई है, दे आर क्वाइट डिसेंट पीपल, दे आर फॉलोअर ऑफ द हाई मॉरल्स एथिक्स, ठीक है। तो लाइक दैट ऐसा ही कंपनीज में भी होता है, और कंपनीज में भी ये चीज़ें टॉप टू बॉटम ट्रैवल करती हैं, और हर तरह के हिस्सों में अगर आप पब्लिक मैसेज दे रहे हैं वहाँ पे भी ये फॉलो करती चीज़, स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं एथिक्स के। अगर एम्प्लॉई मैनुअल्स हैं, एम्प्लॉइज़ के लिए एक कोड बनाया जाता है कि किस तरह दे हैव टू वर्क, दे हैव टू जॉइन, दे हैव टू फॉलो द रूल्स, उसके लिए भी सिस्टम होता है एथिक्स का टॉप टू बॉटम मुकम्मल तौर पे। मिशन स्टेटमेंट भी होती है जो कि टॉप टू बॉटम ही फॉलो करने के लिए होती है। एम्प्लॉइज़ ने फॉलो करना है तो फिर ही वो कंपनी के ऑनर को फ़ायदा देगी ना, एज अ होल, एज अ यूनिट, लाइक दैट। एंड द नेक्स्ट इज़ द लास्ट, दैट इज़ इनफॉर्मल वे। इन इनफॉर्मल वेज इम्पोर्टेड थ्रू इंडिविजुअल्स, उसमें था कि आप डिफरेंट एथिकल कोड्स को इंडिविजुअल से ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ओन वैल्यू सिस्टम, बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी वैल्यू सिस्टम बनाना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। किसी मैनेजर का अच्छा बिहेवियर है उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ एथिकल कोड्स फॉर द कंपनी, ठीक है। लेकिन ये होता है इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे में देखें बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, ठीक है, मिडल टू टॉप हो सकता है, मिडल टू बॉटम भी कहीं भी हो सकता है वो। लेकिन जो फॉर्मल वे है वो हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ ट्रैवल करेगा। उसमें एथिकल वैल्यूज़ भी इनके मैनेजमेंट से लेके जूनियर तक सब के सब एक तरीके के साथ कोड्स को फॉलो करेंगे अपने प्रॉपर वे में, अपने प्रॉपर चैनल से। दे हैव टू फॉलो जो उनका जिसका जो रोल बनता है उस रोल के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी पर्सन विल वर्क। लेकिन जो इनफॉर्मल वे होता है देखें उसमें आप एथिक्स किसी भी इंडिविजुअल से ले सकते हैं, वेदर जूनियर सीनियर, किसी भी सिस्टम से ले सकते हैं, लीडिंग कंपनी से ले लें, जो लीडिंग कंपनी नहीं है उससे ले लें आप एथिकल वैल्यूज़ के, वो एथिक्स उनके प्रोफेशनल एथिक्स कैसे चल रहे हो हम भी उसी तरह के फॉलो रूल्स कर लेते हैं। या किसी भी मैनेजर से ले लें, अपने मैनेजर से ले लें, किसी दूसरी कंपनी के मैनेजर से ले लें, कोई ख़ास रूल नहीं है वहाँ पे लेने के लिए, ठीक है। लेकिन फॉर्मल में आप लीडिंग कंपनी को देखेंगे कि वो क्या कर रही है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लाइक दैट। दैट्स ऑल, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस डिस्कशन बच्चों। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।